नेक्स्ट हम दो वर्ड्स करेंगे, इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर। जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है तो वो दो तरह से दिया जा सकता है, या तो वेन में डायरेक्टली, उसको बोलते हैं इंट्रावीनस, या फिर किसी मसल में, उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्रावीनस मीन्स administered into a vein, given directly into a vein. For example, he was treated with intravenous fluids and antibiotics. Intramuscular means administered into a muscle. For example, he was given an intramuscular shot of painkiller. Shot भी injection को ही बोलते हैं. The next word is deficiency. It means lack of something, not having enough of something. अगर डेफिशिएंसी है किसी ऐसी चीज़ की जो आपकी बॉडी को चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, देन इट कैन बी अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेज आई हैव कैल्शियम डेफिशिएंसी. और जब किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी होती है तो लोगों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज सिवियर, कॉजिंग ग्रेट पेन और डैमेज, वेरी सीरियस. हिंदी में इसका मतलब है सख्त, कड़ा, कठोर, कष्ट देने वाला, जोरदार, गंभीर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ सिवियर हेडेक. और सिवियर का एंटोनिम है माइल्ड. इसका मतलब होता है मॉडरेट, जो ज़्यादा सिवियर नहीं है, सीरियस नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ माइल्ड फीवर. द नेक्स्ट वर्ड इज एंटीबायोटिक. It means medication that kills bacteria and cures infection. For example, my throat infection went away after I started taking the antibiotics. Next is antibacterial, any substance that can effectively kill bacteria, especially on the skin. For example, I use an antibacterial face wash. Next is antiviral. It's a type of drug used to treat an infection or disease caused by a virus. For example, antiviral drugs should not be taken without the advice of a doctor. The next word is antidepressant, medication that helps relieve anxiety and sadness. Anxiety का मतलब होता है घबराहट की फीलिंग. For example, the antidepressants helped me get on with my life after my wife passed away. डिप्रेशन को हम लोग डे टू डे कन्वर्सेशंस में बड़ी लाइटली यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, तू डिप्रेस क्यों हो रहा है. मे बी अ पर्सन इज फीलिंग डिप्रेस्ड नाउ एंड ही विल स्टार्ट लाफिंग आफ्टर 10 minutes. सो दैट इज़ नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिप्रेशन. क्लिनिकल टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में, डिप्रेशन का मतलब होता है एक सीरियस मूड डिसऑर्डर जिसमें बंदा जो है बहुत सैड फील करता है. ही हैज़ अ फीलिंग ऑफ लॉस, ही ऑल्सो फील्स सुसाइडल, और वो फीलिंग बड़ी परसिस्टेंट होती है. It stays for many weeks and many months and a person is unable to come out of that mood. Then he has to consult a psychiatrist, और psychiatrist उसको prescribe कर सकते हैं antidepressants to help him feel better about himself and his life. और ultimately वो बंदा जो है उस depression से बाहर आ सकता है with the help of medication and also with the help of therapy. Next word is blood count. The amount of red and white blood cells that a person has. और blood count को पता लगाने के लिए blood test करना पड़ेगा of course. Example, you'll be happy to know that your blood count is almost back to normal. Next word is cast. A hard bandage that is wrapped around a broken bone to keep it in place. किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो वो जो प्लास्टर होता है उसको बोलते हैं कास्ट. फॉर एग्जाम्पल, my leg was in a cast for 2 months. Next word is crutch, baisakhi, a long stick used as a support for walking, and many people have to use 2 crutches. For example, when he broke his leg, he had to use crutches for 3 months. The next word is immunity. It is the ability of an organism to resist harmful microorganisms like viruses and bacteria. It basically means being protected against infection. For example, the vaccine provides immunity against the virus for up to 6 months.
All of us have an immune system in our bodies. It performs a very important function. जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं फाइट करती हैं फॉरेन बॉडीज़ को, और इस तरह से हम हेल्दी रहते हैं, कई बीमारियों से बचे रहते हैं. लेकिन अगर किसी बंदे का इम्यून सिस्टम वीक है तो फिर वो वल्नरेबल होगा. कई तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया उसकी बॉडी को ईजीली अटैक कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं उसकी हेल्थ को. द नेक्स्ट वर्ड इज इम्यूनाइजेशन. It is the process of making a person or animal immune to a disease, typically by giving them a vaccine. तो immunization और vaccination का basically same meaning होता है. Example sentence: Immunization programs have eradicated polio from many parts of the world. Eradicate का मतलब खत्म कर देना. Next is vaccinate. To give somebody a vaccine, usually by injection, to prevent them from getting a disease. For example, I got myself vaccinated against coronavirus yesterday. ये वर्ड बना है वैक्सीन से. वैक्सीन का मतलब होता है एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जिसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया बड़ी वीक फॉर्म में है, तो इंसान की बॉडी में जब वो इंजेक्ट किया जाता है तो वो हार्म नहीं करता बॉडी को, बल्कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए उसके अगेंस्ट. तो फिर जब बाद में बंदे को वाकई में अटैक करता है वो वायरस या बैक्टीरिया, तो एंटीबॉडीज़ पहले से क्योंकि शरीर में बनी होती हैं इसलिए उसको बहुत कम इफेक्ट होता है या बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता उस डिजीज़ का. तो वैक्सीन से बना वैक्सीनेट और उसका नाउन होता है वैक्सीनेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन अ वैक्सीन. एग्जाम्पल: वैक्सीनेशन इज़ अ सिंपल, सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम COVID-19. द नेक्स्ट वर्ड इज थेरेपी. कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिससे किसी बंदे की मेंटल या फिजिकल कंडीशन इंप्रूव हो सकती है. एग्जाम्पल: आई वॉज एबल टू गो बैक टू वर्क अ फ्यू वीक्स आफ्टर स्टार्टिंग द थेरेपी. नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक, हेल्पिंग टू ट्रीट और क्योर इलनेस. द थेराप्यूटिक मसाज relieved the pain in my back. The correct pronunciation of this word is massage. Next is infection. Invasion of the body by microorganisms such as bacteria, viruses and parasites, where they multiply and cause harm. तो बॉडी के ऊपर हमला कर देते हैं, बॉडी में घुस आते हैं, बॉडी पर छा जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स, और वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल: पुअर हाइजीन कैन इंक्रीज द डेंजर ऑफ इन्फेक्शन. हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई. हाइजीनिक साफ और अनहाइजीनिक मैला, गंदा. द नेक्स्ट वर्ड इज बेड रिडन. इसका मतलब होता है कन्फाइंड टू बेड बिकॉज ऑफ इलनेस, इंजरी, वीकनेस और ओल्ड एज. बहुत बीमार होता है कोई या बहुत बूढ़ा होता है तो वो लास्ट स्टेज पे बेड पे ही लेटा रहता है और उठ के कोई काम नहीं कर सकता अपने आप, उसको बोलते हैं ही इज़ बेड रिडन. एग्जाम्पल: ही हैज़ बिन बेड रिडन सिंस सर्जरी. और सर्जरी का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी और डिजीज बाय कटिंग ओपन द बॉडी एंड रिमूविंग और रिपेयरिंग द डैमेज्ड पार्ट. तो चीर फाड़ करके बॉडी की मरम्मत करना, उसको बोलते हैं सर्जरी. एग्जाम्पल: हिज हार्ट सर्जरी हैज़ बिन शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट वीक. हैज़ बिन शेड्यूल्ड फॉर का मतलब है उसका टाइम ये फिक्स किया गया है. और कॉलोकेशंस जो यूज़ होते हैं सर्जरी के साथ वो हैं टू हैव अ सर्जरी, टू अंडरगो अ सर्जरी, माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी, टू रिकवर फ्रॉम सर्जरी. The next word is pre-operative. It means before a surgery, before an operation. For example, the aim of pre-operative care is to increase the chances of success of the surgery. And post-operative means after the surgery. For example, the aim of post-operative care is to help the patient recover from the effects of the surgery quickly and safely. The next word is conscious. इसमें आई साइलेंट है, इसको बोलते हैं कॉन्शियस. एंड द मीनिंग इज अवेक, थिंकिंग एंड नोइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू.
होश में कोई बंदा है तो वो कॉन्शियस है. फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट ट्राई टू स्टे कॉन्शियस until we get to the hospital. Next is consciousness, awareness of sensations, thoughts and surroundings. होश को बोलते हैं consciousness. So if a person loses consciousness तो वो बेहोश हो जाता है, and if a person regains consciousness तो वो दोबारा होश में आ जाता है. Example sentences: the patient has lost consciousness and the patient has regained consciousness. The next word is unconscious, behosh, not awake and not aware of surroundings. Example: she remained unconscious for several hours after the accident. The next word is critical. It means extremely serious or dangerous. बहुत ज़्यादा नाजुक. जब जिंदगी और मौत का सवाल होता है तब डॉक्टर कहता है कि the patient's condition is critical. और पेशेंट की कंडीशन और कैसे डिस्क्राइब की जा सकती है? हो सकता है डॉक्टर आके कहे कि द पेशेंट्स कंडीशन इज सीरियस, ये क्रिटिकल से थोड़ा नीचे होता है. या कह सकता है द पेशेंट्स कंडीशन इज स्टेबल, इसका मतलब है कि ना तो इम्प्रूव हो रही है लेकिन बिगड़ भी नहीं रही. या कह सकता है कि द पेशेंट्स कंडीशन इज इम्प्रूविंग. अब देखें, सर्जरी दो तरह की हो सकती है. या तो हो सकती है इन्वेजिव या हो सकती है नॉन इन्वेजिव. तो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड व्हाट इन्वेजिव सर्जरी मीन्स. इन्वेजिव का मतलब है पुटिंग समथिंग इनटू समवन्स बॉडी और कटिंग इनटू समवन्स बॉडी. इस तरह का जो ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं इन्वेजिव. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर्स. इसका मतलब है कि मुझे ज़्यादा चीर फाड़ वाले ऑपरेशन से बहुत डर लगता है. द सेकेंड टाइप ऑफ सर्जरी इज नॉन इन्वेजिव. A non-invasive medical test or treatment does not involve cutting your body or putting instruments inside it. Non-invasive surgery में कम से कम कटिंग की जाती है बॉडी की या बिल्कुल ही नहीं की जाती. लेज़र से होता है ट्रीटमेंट, कई और टेक्निक्स हैं. एग्जाम्पल: डॉक्टर कपूर स्पेशलाइजेज इन non-invasive surgery. Next, allopathy means ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय कन्वेंशनल मेडिसिन. आम जो प्रचलित मेडिसिन का सिस्टम है उसको बोलते हैं एलोपैथी, जिसको लोग स्टडी करते हैं कॉलेजेस में, MBBS करते हैं, MD करते हैं जिसमें. और एलोपैथी से एडजेक्टिव बनता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन एलोपैथी. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन. Medical treatments that are not standard or mainstream. These kind of treatments are becoming very popular these days because allopathy is not able to cure so many medical problems. For example, more than half of adults in US say that they use some form of alternative medicine. Here I would like to list and define some systems of alternative or complementary medicine which are popular all around the world. The first one is acupuncture. इसमें पेशेंट की बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट्स पे नीडल्स चुभाई जाती हैं. देन एक्यूप्रेशर. इसमें पेशेंट की बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट्स पे प्रेशर डाला जाता है विथ फिंगर्स, पाम्स, एल्बोज, फीट और स्पेशल डिवाइसेस. नेक्स्ट है नेचुरोपैथी. इसमें ड्रग्स अवॉइड किए जाते हैं. सर्जरी ड्रग्स में बिलीव नहीं करते ये लोग और यूज़ करते हैं जो नेचर ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं, जैसे कि एयर, वाटर, हर्ब्स और डाइट की हेल्प से, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट की हेल्प से डिजीज़ को ठीक किया जाता है. नेक्स्ट है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन. इसको TCM भी बोलते हैं. ये बहुत पुराने ज़माने से चाइना में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं लोग और इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स. इसमें एक्यूपंक्चर भी आ जाता है, डाइट, हर्बल थेरेपी, हर्ब्स की मदद से जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं ये भी, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज और मसाज. नेक्स्ट है होम्योपैथी, मीठी गोलियों वाला ट्रीटमेंट. इसमें नेचुरल सब्सटेंसेस से ट्रीटमेंट किया जाता है. ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस जो बॉडी में वही सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं जो बीमारी के हैं. इसका मेन सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल होता है कि लाइक क्योर्स लाइक, लोहा लोहे को काटता है. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सोलॉजी. इसमें बेसिकली मसाज यूज़ की जाती है. इसकी थ्योरी ये है कि हमारे हर बॉडी पार्ट का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारे फीट में, हैंड्स में या हेड में कहीं ना कहीं है, तो उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके बीमारी का इलाज किया जाता है.
नेक्स्ट टर्म है कायरोप्रैक्टिक। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के लिए, मसल्स या बोन्स की प्रॉब्लम्स के लिए, और इसमें जॉइंट्स को प्रेस करके मूव करके इंजरीज को या मैकेनिकल डिसऑर्डर्स को ठीक किया जाता है। उसके बाद आयुर्वेद, ये हमारा इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, जो कि वेदों में पाया जाता है। इसमें डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हर्बल मेडिसिन्स, डाइट एंड योगिक ब्रीदिंग, जिसको प्राणायाम कहा जाता है। नेक्स्ट है हर्बलिज्म। इसमें हर्ब्स का यूज़ किया जाता है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। ये जो वर्ड है हर्ब, हर्ब का मतलब होता है कोई बूटी जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हों, और इस वर्ड को ब्रिटिश लोग तो एच के साथ प्रोनाउंस करते हैं, हर्ब कहते हैं वो, लेकिन अमेरिकन्स एच नहीं बोलते, तो वो इसको प्रोनाउंस करेंगे हर्ब्स, और हर्बलिज्म कहते हैं वो इसको। अगला ट्रीटमेंट है जी रेकी। इसको एनर्जी हीलिंग भी कहा जाता है। ये जापान में ओरिजिनेट की थी, और इस केस में क्या होता है कि जो रेकी प्रैक्टिशनर है, जो थेरेपिस्ट है, वो पॉजिटिव एनर्जी सेंड करता है पेशेंट की बॉडी में, और उसके नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, उसकी हेल्थ को रिस्टोर करता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। मेडिटेशन का बेसिक मीनिंग होता है टेकिंग चार्ज ऑफ द माइंड, कंट्रोल करना माइंड को। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, माइंड को एम्प्टी करना, कोई भी थॉट ना होना माइंड में, या माइंड को पूरी तरह से फोकस करना किसी एक ऑब्जेक्ट, थॉट या एक्टिविटी के ऊपर। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। शुरू में तो बहुत मुश्किल लगता है, बट विद प्रैक्टिस यू आर एबल टू डू इट। और ऐसा कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि मेडिटेशन से बहुत सारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। द नेक्स्ट टर्म इज़ योगा। योग कहते हैं वैसे हिंदी में। इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ बॉडी पोस्चर्स, जिनको आसन्स कहते हैं हम। मेडिटेशन भी आ जाती है इसमें, एंड ब्रीदिंग कंट्रोल, जिसको बोलते हैं प्राणायाम। तो इसकी हेल्प से माइंड और बॉडी का परफेक्ट बैलेंस अचीव किया जा सकता है, ऐसा क्लेम है। एंड द लास्ट वन इज़ डाइट एंड न्यूट्रिशन। इसके भी बड़े सारे फैंस हैं। बहुत लोग मानते हैं कि कोई भी ड्रग थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ वेल बैलेंस्ड डाइट एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। द नेक्स्ट टर्म इज प्लेसिबो इफेक्ट। इट्स अ फिनोमिनन in which some people benefit from a fake treatment because of their faith and positive attitude. तो प्लेसिबो का मतलब होता है झूठ मूठ की नकली दवाई। तो वो नकली दवाई लेने से कई लोग ठीक हो जाते हैं बिकॉज दे हैव सो मच फेथ एंड सो मच कॉन्फिडेंस इन द ट्रीटमेंट दे आर गेटिंग। एग्जाम्पल, ही गॉट बेटर नॉट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एनी ड्रग बट बिकॉज ऑफ द प्लेसिबो इफेक्ट। शायद आपको लगेगा कि ये तो गप है, झूठ मूठ की दवाई से कैसे कोई बंदा ठीक हो सकता है, बट आई मस्ट टेल यू दिस इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें प्रूव हुआ है कि प्लेसिबो इफेक्ट वाकई में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पेशेंट्स के 2 ग्रुप बना लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और उनको बताया कि आपको बहुत एडवांस्ड और बहुत बढ़िया ड्रग दिया जाएगा 10 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए। तो उनमें से एक ग्रुप को तो वाकई में ड्रग दिया जाता है, और दूसरे ग्रुप को झूठ मूठ की दवाई दी जाती है, पाउडर की गोलियां जिसमें कुछ भी नहीं है। और जब रिजल्ट आता है तो वो बड़ा सरप्राइजिंग है, दोनों ग्रुप्स में इम्प्रूवमेंट होती है। जिस ग्रुप को तो वाकई में ड्रग दिया गया उनमें तो समझ आ गई कि इम्प्रूवमेंट क्यों हुई, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग। बट जिनको नहीं दिया गया ड्रग, झूठ मूठ की गोलियां दी गई, उनमें इम्प्रूवमेंट क्यों हुई, बिकॉज ऑफ देयर फेथ एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। इस चीज़ को बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। द नेक्स्ट टर्म इज सेल्फ मेडिकेशन। इसका मतलब है अपने आप दवाई लेनी विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। और सेंटेंस है कि सेल्फ मेडिकेशन कैन हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। इंडिया में तो सारे डॉक्टर्स हैं, हम सबके घर में इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं। अगर कोई वेस्टर्न डॉक्टर देख ले एक आम घर में किस किस तरह की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं तो ही वुड बी हॉरिफाइड, क्योंकि वेस्ट में सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यू कैन नॉट बाई मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। द नेक्स्ट वर्ड इज हाइपोकॉन्ड्रियाक, अ पर्सन हु इज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हेल्थ विदाउट एनी रीज़न। तो ऐसे लोग जो हैं इंटरनेट पे सिम्टम्स चेक करते रहते हैं,
चिंता में रहते हैं कि मुझे ये बीमारी तो नहीं है, मुझे वो बीमारी तो नहीं है, डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं. एग्जाम्पल, he is a hypochondriac. He is always at the doctor's.